these financial mistakes during your 20s will going to cost you a lot. Hey everyone, this is me, Seema Manish, and welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, currently I'm in my early 20s और मैं early 20s में हूँ, मतलब I'm in my 20s. And secondly कि I come from a very middle class family, I think lower than middle class family, and I have seen struggling my parents for single rupees. Like मुझे अच्छे से याद है, मैं 500 रुपए के लिए देखा है मेरी फैमिली में struggles. So I cannot like, मतलब मेरे को अहमियत है पैसों की बहुत ज़्यादा. लाइक मनी मैटर्स अ लॉट फॉर मी एंड आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर सिंगल पेनी ऑल्सो. तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल जिनको मेरी तरह पैसों की बहुत ज़्यादा अहमियत है इन देयर लाइफ, बिकॉज आई थिंक दे हैव सम पास्ट जिसमें उन्होंने बहुत मुश्किल देखी है एंड दे नो कि अगर इस वक्त मेरे पास पैसा होता तो शायद ये वाली प्रॉब्लम में अवॉइड कर सकता. तो फॉर ऑल दोज पीपल I have few tips for you actually. And see guys, the 20s, actually 20s is the age where you have to manage your finances very rightly, because अगर आपने 20s में अपने finances अच्छे से manage नहीं करे, then that can cost you later. And also 20s you do not have much responsibilities, you do not have much expenses. मतलब much expenses as in कि कोई ऐसे करने ही करने वाले expenses नहीं होते, because I think after your marriage, after your kids, you have to pay for their schools, you have to pay for groceries, you have to pay for rent, you have to pay for your family, you have to do all that. But अभी there's a time where you can avoid few expenses जो कि आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो. Like, so in 20s basically is a time to manage your finances. That's what all I wanted to say in a nutshell. So अभी I'm just going to share maybe 5 tips with you all which I am following, and I think if you guys will follow that might help you also. क्योंकि 20s में आपका स्टार्ट हो जाता है पैसे कमाना और आप नए नए पैसे देखते हो तो अलग ही भूत सवार होता है, खर्च करते हो बिंदास, ये कर लिया वो कर लिया फलाना ढिमकाना. Everything I know, but everything should be done in a manner that I'm just going to tell you all. First thing first, सबसे पहली जो मिस्टेक लोग करते हैं दैट इज एक्सेसिव बोरोइंग. मतलब दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड्स ले लेंगे, दुनिया भर के वो ले लेंगे, महंगे महंगे फ़ोन खरीद लेंगे, महंगे वॉचेस खरीद लेंगे, महंगी बैग्स खरीद लेंगे, महंगी गाड़ियाँ खरीद लेंगे. एंड लाइक, एंड दैट टू नॉट बिकॉज दे एक्चुअली वॉन्ट एंड लाइक दे एक्चुअली नीड दैट, क्योंकि ऑब्वियसली आपका नॉर्मल वॉच से भी काम चल सकता है. बट सिंस यू आर वियरिंग 50, 60, 70,000 वॉच इन योर हैंड just to show people, just to fit in the society, and you are only 21 or 22, and that too you are taking loan from the people and taking credit cards and purchasing that. That is the biggest mistake which you can actually do in your 20s. So I'm not saying ki do not spend like this, but if you're purchasing any luxury things, like, this is basically my opinion and this is what I follow. Whenever I purchase something like luxurious, मैं वैसे normally purchase नहीं करती हूँ, but if I do, I see that first of all I'm not purchasing that from borrowings. वो मैं किसी से पैसे उधार लेके क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे नहीं परचेज कर रही हूँ. That I will purchase on my own money and with full money. Second thing, if I can afford एट दैट टाइम, जब मैंने वो चीज़ खरीदी, क्या उसी वक्त मैं वो सेम चीज़ दोबारा खरीद सकती हूँ विदाउट टेकिंग अ सिंगल पेनी ऑफ फ्रॉम एनी वन, फ्रॉम एनी बैंक, फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम एनी फ्रेंड, फ्रॉम माई फैमिली? क्या मैं वो चीज़ दोबारा उसी वक्त खरीद सकती हूँ? इफ द आंसर इज येस, देन आई विल परचेज दिस. इफ द आंसर इज नो मनीषा, अभी तेरे पास इतना पैसा तो अभी एक बार खरीद सकती है, बट दोबारा अगर इसको खरीदने की जरूरत पड़ी देन यू कैन नॉट परचेज दिस, देन आई विल नॉट परचेज. तो do not take excessive borrowings just to purchase these luxury things. That is the first mistake people do. And second mistake is also, like, second tip which I'm going to give you, that is also relates to this, that people see कि देखो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आए हो, माइट भी आपका घर नहीं हो सकता, यू आर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट और एक रेंटेड घर में रह रहे हो और आपके पास गाड़ी नहीं है, लाइक यू डो नॉट ओन अ 4 व्हीलर, आपके पास 2 व्हीलर है, फिर वो भी नहीं है सपोज. एंड जब आपके पास पैसा आता है तो आपको लगता नहीं मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, अब मैंने कमाना शुरू कर दिया है, फलाना ढिमकाना. आई नो, एंड एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम एन इमोशन कि नहीं मेरी फैमिली ने कभी घर नहीं देखा खुद का, मुझे उनका खुद का घर बनाना है. दैट इज फाइन, बट डू नॉट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज, इन हाउसेज ड्यूरिंग योर अर्ली पीरियड, बिकॉज दैट इज अ वेरी 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 बिग इन्वेस्टमेंट. कार का चलो एक बार को मैं मान भी लेती हूँ, इट्स नॉट दैट मच, बट हाउस इज लाइक अ बिग थिंग. एंड उसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो आपने अभी दुनिया भर के लोन लेके
खरीद लिया है घर और आपने आगे आने वाली अपनी लाइफ को डेट में डाल दिया है, लाइक इट्स अ डेट ट्रैप एक्चुअली। तो डू नॉट डू दैट मिस्टेक। आई नो कि अभी तक आपकी फैमिली रेंटेड में रह रही है, इट्स ओके, टाइम विल कम। लेट इतने साल भी रहे हैं ना, कुछ साल और की बात है। बिल्कुल पैसा आके दिखाने मत लग जाओ, चकाचौंध मत कर दो कि अब मेरे पास बहुत ही पैसा आ गया, मेरे पास ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा। रिलैक्स, चिल, सब कुछ करना, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डू नॉट इन्वेस्ट इन हाउसेज अर्ली, लाइक दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू कैन डू। इनफैक्ट, मतलब वो बेसिकली मेरी थर्ड टिप है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। आप इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करो, घर मत खरीदो अभी, इन्वेस्टमेंट्स करो। अगर आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं आ रहे, थोड़े से भी एसआईपी स्टार्ट कर दो, कुछ शेयर्स में पैसे लगाओ, कुछ मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करो, गोल्ड में लगाओ, ईटीएफ्स खरीदो। सो इन्वेस्ट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। अगर आपके पास मुश्किल से 5,000 रुपये बच रहे हैं महीने के, 5,000 की एसआईपी शुरू कर दो। 2,000 बच रहे हैं, 2,000 की एसआईपी शुरू कर दो। कितना भी पैसा बच रहा है, स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट, कई मतलब डिवेंचर्स वगैरह, किसी में भी आपको पैसे लगाने लगा दो, बट इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर दो ड्यूरिंग अर्ली स्टेज। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि अभी तो मेरी यार सिर्फ 40,000 ही सैलरी है, सिर्फ 50,000 ही सैलरी है, इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करूंगा, 50,000 सैलरी में मेरा 1,000 तो रेंट ही चला जाता है, 4-5 हज़ार रुपये मुश्किल से बचते होंगे। इन्वेस्ट दैट, जितने भी बचते हैं एटलीस्ट टेक सम पोर्शन फ्रॉम योर सैलरी, पक्का से पक्का निकल जाएगा, उसको स्टार्ट इन्वेस्टिंग, उसको इन्वेस्ट करना कर मतलब स्टार्ट कर दो। So third thing and tip is to start investing early. That is like वेरी मच नीडेड एंड वेरी मच रिक्वायर्ड टिप कि आप इन्वेस्टमेंट करो। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स ना आर्टिकलशिप के पीरियड में स्टार्ट कर दी थी। तब मैंने फिक्स कुछ नहीं करा हुआ था, क्योंकि मेरे को पास कभी पैसे बचते थे, कभी नहीं बचते, क्योंकि मेरा 10K 15K स्टाइपेंड ही रहता था, सॉरी 15K 20K स्टाइपेंड रहता था। बट दैट टाइम ऑल्सो आई यूज टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन इक्विटी। मैंने कुछ ऐसे रिकरिंग डिपॉजिट्स नहीं कर रखे थे, मतलब जैसे एसआईपी वगैरह नहीं स्टार्ट करी थी, वो मैंने अभी करी है। तब मैंने नहीं कर रखी थी, क्योंकि मेरे पास परमानेंट नहीं रहता कि हाँ ठीक है इतना मेरे पास बचेगा ही। बट जितना भी बचता था मैं उसको इन्वेस्ट कर देती थी। दैट इज देयर। फोर्थ इज हैव इमरजेंसी फंड। अब मैं बोल रही हूँ कि इन्वेस्टमेंट करो, तो आप मतलब ऐसे किसी में मत लगा दो पैसा कि आपको मतलब सपोज अगर आपको कोई फैमिली में इमरजेंसी हो गई, कि मेडिकल इमरजेंसी हो गई, यू डू नॉट हैव एनी लिक्विड फंड्स। अगर आप इन्वेस्ट भी करो, ऐसी जगह लगाओ कि अगर आपको अभी पैसे चाहिए आप तुरंत ले सकते हो, लाइक इन अ 24 आवर्स यू कैन विदड्रॉ दैट मनी। तो इमरजेंसी फंड हमेशा हमेशा रखो। डू नॉट लेट योर बैंक बैलेंस बिकम नील, कि कुछ जीरो है, अगर अचानक से कुछ इशू आ गया, देन यू डू नॉट हैव एनी सिंगल सिंगल मनी। ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऑलवेज हैव, like always have your emergency fund. That is the fourth trip. And the fifth and the last trip is manage your expenses. If not manage, track your expenses, track your income. मैंने बहुत बार देखा है, इनफैक्ट आई हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन, बट लकली आई वॉज बेसिकली मैं अपने टीनेजर में ही थी तब, व्हेन आई वाज 18-19 व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय आर्टिकलशिप। और उस वक्त मुझे मिलते बहुत कम ही थे, 15-20 थाउजेंड ही मिलते थे। बट आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज, मतलब मेरे को 15,000 आते थे मेरे बैंक से, कहाँ कैसे गायब हो रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा पीजी भी उस टाइम बहुत कम था, 5-6 थाउजेंड का मेरा पीजी था। मेरे 10-12 हज़ार रुपये कहाँ जा रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं चल पाता था। सो यू हैव टू ट्रैक एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस वेरी वेरी क्लियरली। आपके पैसे कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितना ग्रोसरीज में स्पेंड हो रहा है, कितना एंटरटेनमेंट में स्पेंड हो रहा है, कितना आपके ट्रिप्स में लेजर्स में स्पेंड हो रहा है। वो सबका मैनेजमेंट रखो, उन सबका ट्रैक रखो। डू नॉट लेट इट वेग कि आपको अभी 1 लाख रुपए सैलरी क्रेडिट हुई, 15 दिन बाद आप बैंक अकाउंट में देख लो 40,000 रुपए हैं या 35,000 रुपीज हैं, बाकी 60,000 65,000 कहाँ गए, यू हैव नो आइडिया। ऐसा नहीं करना है। मैनेज योर इनकम एंड एक्सपेंस। आई एम नॉट सेइंग कि कट ऑफ द एक्सपेंसेस या फिर ऐसे ऐसा करो, एटलीस्ट हैव अ ट्रैक, मतलब पता होना चाहिए आपके पैसे कहाँ पे कितने जा रहे हैं। सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स खोल सकते हो कि आपके पास जब इनकम आई इतना इस वाले बैंक अकाउंट में डाल दोगे, दैट इज फॉर योर एक्सपेंडिचर्स, लाइक आपकी ग्रोसरीज हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उन सब चीज़ के लिए इतना आपने डाल दिया। फॉर योर वीकेंड्स में लंच के लिए बाहर चले गए, डिनर के लिए बाहर चले गए, ट्रिप्स पे चले गए, मूवीज चले गए, एंटरटेनमेंट बेसिकली उसके लिए। तो ऐसे ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में अपने पैसे डाल सकते हो, तो आपका ईजिली हो जाएगा ट्रैक करना। सो manage and track your expenses and your income. So, yep, this is all. I think these are the 5 tips which I am following, and I want you, every one of you, to follow these tips. And it's like you guys will going to earn a lot. Just the start, and do not let money get into your heads, get into your nerves. Take it slowly, take it calmly, and you will going to achieve everything. So, yep, that's all for this video, guys. I'm going to see another video. Till then, bye bye.